Okay, beta. So in today's class, let us start our new chapter, differentiation. So last class में हम limits देखे हैं, right? इसमें questions कैसे करना है, extra topics सब कुछ हम discuss कर चुके हैं. Okay. So the next chapter is differentiation. So we have already understood what differentiation in physics, right? Physics का starting में आपको differentiation का introduction मिल चुका है. So in this chapter, let us try to understand what is differentiation. Differentiation का मतलब क्या है? ठीक है. So differentiation in some sense is a rate of change. Differentiation का मतलब है rate of change. So मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए एक फंक्शन y is equal to f of x है, right? So if you have a function y is equal to f of x, उसका कुछ ना कुछ ग्राफ तो रहेगा, right? तो y is equal to f of x का मान लीजिए एक ग्राफ है. So as you move on this graph, मान लीजिए आप इस ग्राफ के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे आप है. So this point has two coordinates x, y, right? जैसा आप आगे जाते रहेगा, मान लीजिए आप थोड़ी देर के बाद यहाँ आया, आपके x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा, राइट? सो मान लीजिए ये x1 y1 है, मान लीजिए ये x2 y2 है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट x3 y3 है, ये वाला पॉइंट x4 y4 है. So as you are moving on this graph, as you are moving to different points on this graph, आपका x कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, आपका y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, राइट? अब मान लीजिए ये से b तक जा रहे हैं. What is the change x coordinate? Change in x coordinate from a to b कितना होगा, बोल सकते हैं? As you move from a to b, आपका x कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ है? x2 माइनस x1, सही है, क्योंकि b में आपका x कोऑर्डिनेट x2 है, a में x कोऑर्डिनेट x1 है. So what is the change in x coordinate? It is x2 minus x1, सही है. What is the change in y coordinate? From So a y2 minus y1. y2 minus y1. So मेरा क्वेश्चन है, should these two be always be same? अगर एक कोई भी एक आर्बिट्री कर्व में आप एक पॉइंट से एक पॉइंट तक गया तो आपका x कोऑर्डिनेट जितना चेंज हुआ, आपका y कोऑर्डिनेट जितना चेंज हुआ, वो दोनों सेम होना चाहिए या अलग भी हो सकते हैं? So अलग 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 भी हो सकता है ना. एंड इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट चेंज इन x कोऑर्डिनेट ग्राफ, ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं मैं. ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो मान लीजिए दे आर जॉइनिंग ईच अदर एट पॉइंट पी. सो ए पी का लेंथ क्या होगा? चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट होगा या चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट होगा? Change in x coordinate. So change in change x coordinate. x coordinate, right? bp is the change in y coordinate, सही है क्या नहीं? समझ रहे? यस सर. सो अगर आप मान लीजिए b से c तक जा रहे हैं, as you move from b to c, we can apply the same concept. x कितना चेंज हुआ, y कितना चेंज हुआ. तो यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ मैं ऐसा.
अगर मान लीजिए ये पॉइंट Q है, so as you move from B to C, BQ is the change in x coordinate, CQ is the change in y coordinate, right? सही है कि नहीं? Similarly from C to D, समझ रहे? You can think of some sort of step like this. Clear? अब मान लीजिए ये curve y is equal to f of x है. Assume that we are looking at rate of change of variable y, rate of change of variable y with respect to variable x. Rate of change of variable y with respect to variable x का meaning is, the meaning of this English phrase is nothing but change in y by change in x. अगर if you use this phrase rate of change of one variable y with respect to variable x, that means we are asking the ratio of change of y and change of x. समझ रहे? Now what is the rate of change of variable y with respect to variable x of this curve y is equal to f of x? Is it a valid question? एक बार मैं question लिख रहा हूं. Tell me whether the question makes sense or should we need more information. मेरा question है, what is the rate of change of variable y with respect to variable x of curve y is equal to f of x? Is it a valid question? Is it a valid question or should we add something else to make this question meaningful? आप रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल विथ ए पर्टिकुलर वेरिएबल जो है आप पूरा कर्व का डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. अगर ए एंड बी के बीच में आप मेजर किया तो y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन कुछ नंबर आएगा. बी और सी के बीच में भी एग्जैक्टली सेम नंबर आना चाहिए या चेंज हो सकते हैं? चेंज हो सकता है. एंड सी एंड डी के बीच में rate of change of y with respect to x change हो सकता है. So as you move to different parts of a curve, as you move to different part of a curve, rate of change of y with respect to x आपको change हो सकता है, right? समझ रहे? So is not very meaningful. सही है क्या नहीं? पूरा कर्व का रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x पूछना इतना मीनिंगफुल नहीं होगा. क्लियर है? बट वी कैन थिंक ऑफ rate of change of one variable with respect to other variable between any 2 points. Rate of change of y with respect to x between a and b. ऐसा पूछ सकता हूं मैं? सही है, between a and b पूछ सकता हूं. So this is nothing Yes, but sir. y2 minus y1 by x2 minus x1 होगा. ये नंबर को हम rate of change of y with respect to x पूछते हैं, right? बोलते हैं. क्लियर है? इसका मतलब a एंड b के बीच में y जितना रेस हुआ x जितना रेस हुआ उस दोनों का रेशियो. क्लियर है? अगर मान लीजिए ये वाला रेशियो 1 है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? तो 1 निकला, इसका मतलब क्या होगा फिजिकली? इसका मतलब क्या है? y जितना इंक्रीज हुआ x भी उतना ही इंक्रीज हुआ, राइट? सही क्या? Yes, sir. Yes, sir.
अगर ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब क्या है? y ज्यादा रेज हो रहे फॉर ए पर्टिकुलर चेंज इन x, राइट? है ना, x का चेंज से y का चेंज ज्यादा है, राइट? Yes, sir. इसका मतलब हम फिजिकली ऐसा सोच सकते हैं द कर्व इज मोर स्टीप। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x 1 से बड़ा है तो दैट मीन्स द कर्व इज मोर स्टीप, सही है? अगर लेस देन 1 है तो x ज्यादा है बट y Sir, जितना बढ़ना चाहिए steep उतना नहीं है नहीं बढ़ sir. रहे हैं, सो इसको मैं फ्लैट बोल सकता हूँ। अगर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 लेस देन 1 है तो यू कैन थिंक ऑफ द कर्व एज मोर फ्लैट, राइट? दिस मीन्स स्टीप, सही है? क्लियर? सो ऑन दिस कर्व जैसा आप आगे जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज आपको रेट ऑफ चेंज का वैल्यू जो है बढ़ रहा है या कम हो रहा है एज यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ बढ़ रेस्पेक्ट रहा टू है x सर. बढ़ रहा है ना? सब बढ़ रहा है. हाँ सर. कैसे बोल रहे हो आप, मतलब क्यों क्यों आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है? बिकॉज द कर्व इज बिकमिंग मोर स्टीप एज यू ऑब्जर्व, है ना? कर्व स्टीप हो रहा है ना थोड़ा सा, समझ में आ रहे? द मोर Yes, स्टीप sir. द कर्व इज the more the rate of change of y with respect to x. Clear? The more flat the curve is, the less the change of y with respect to x. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. नोट किया? आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Next, rate of change can be positive or negative. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। मान लीजिए कर्व ऐसा है, मान लीजिए कर्व ऐसा है a b x1 y1 x2 y2 a b x1 y1 x2 y2। इस कर्व में एज यू गो फ्रॉम ए टू बी एक्स का वैल्यू बढ़ रहे हैं, वाई का वैल्यू भी बढ़ रहा है ना? एज यू मूव फ्रॉम ए टू बी एज यू मूव फ्रॉम ए टू बी आपके एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ा है, वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ा है, राइट? सो रेट ऑफ चेंज is nothing but y2 minus y1 by x2 minus x1 is greater than 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी नंबर पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, राइट? द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। बट मान लीजिए इफ यू मूव ऑन दिस कर्व, आप आगे जा रहे हैं, इसका मतलब है आपका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहे हैं, बट आप नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब आपका वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है ना? सो इफ यू थिंक अबाउट रेट ऑफ चेंज, अभी भी फॉर्मूला तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 है, बट आप ध्यान से देखिए x2 माइनस Sir, x1 तो less than पॉजिटिव 1 है है। sir. हाँ, Sir, less than 1. लेस देन 0 है शायद, Yes sir, yes. पॉजिटिव है, बट y2 माइनस y1 क्या है, नेगेटिव है, राइट? लेस देन 0, समझ रहे? So rate of change of one variable with respect to other variable can be positive or negative. Clear? So as you are moving right, if you are going up, आप सीधा रास्ते में गए, right का मतलब सीधा, ठीक है? As you are going right, if you are going up, then we say that this is an increasing graph. समझ रहे? As you are moving to the right, if you are going down, it is a decreasing graph. समझ रहे? अगली बार से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब समझना है आप। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या है? आप उस ग्राफ में राइट साइड जा रहे तो आप ऊपर उठना चाहिए, समझ रहे?
डिक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या है? इफ यू आर मूविंग राइट यू हैव टू मूव डाउन, समझ रहे? सो डिक्रीजिंग ग्राफ का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। इंक्रीजिंग ग्राफ का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। क्लियर है? स्टीपनेस डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलस ऑफ रेट ऑफ चेंज। देखिए, स्टीपनेस डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलस ऑफ रेट ऑफ चेंज। हम डिक्रीजिंग ग्राफ का भी स्टीपनेस को समझ सकते हैं। जैसा हम सोचे हैं, अगर स्टीपनेस ज्यादा है तो रेट ऑफ चेंज का वैल्यू बढ़ रहा है ना, स्टीपनेस कम है तो रेट ऑफ चेंज का वैल्यू कम हो रहा है। नेगेटिव नंबर्स छोटा नंबर्स है क्या बड़ा नंबर्स है? सो यूजुअल थिंकिंग इज नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉल नंबर्स। सो हमको लगेगा कि जैसा डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा कर्व फ्लैट हो जाएगा, वैसा नहीं है। अब ध्यान दे दीजिए, मान लीजिए एक कर्व ऐसा है ए बी सी डी। कर्व ए बी पे फ्लैट है क्या सी डी पे फ्लैट है? विच कर्व इज मोर फ्लैट? AB. दिस इज फ्लैट, दिस इज स्टीप है ना कंपैरिजन में। सो कहाँ का रेट ऑफ चेंज ज्यादा होना चाहिए? कहाँ का रेट ऑफ चेंज ज्यादा होना चाहिए? मान लीजिए ये दोनों में, एक फ्लैट है एक स्टीप है। ये ज्यादा होना चाहिए सर। स्टीप में ज्यादा होना चाहिए जैसा हमारा अंडरस्टैंडिंग है। बट एज यू कैन सी दीज आर नेगेटिव रेट्स ऑफ चेंज। अभी भी मान लीजिए यहाँ रेट ऑफ चेंज 1 है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ रेट ऑफ चेंज 0.5 जैसा हो सकता है, समझ रहे? बट दिस इज ए डिक्रीजिंग ग्राफ, सो रेट ऑफ चेंज तो है नेगेटिव होगा। सो वैल्यू वाइज कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? वैल्यूज आपको दिख रहा है कि ये बी का वैल्यू बड़ा है ना, सी डी का वैल्यू छोटा है रेट ऑफ चेंज का। क्लियर है? सो ये कंफ्यूजन को करने के लिए हम बोल रहे हैं कि स्टीपनेस ऑफ द कर्व डिपेंड्स ऑन व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ रेट ऑफ चेंज। आप साइन को देखना नहीं है। सो मॉड्यूलस ऑफ रेट ऑफ चेंज कितना है? ये 1 है। यहां मॉड्यूलस ऑफ रेट ऑफ चेंज कितना है? सो दिस प्लस एंड नेगेटिव, positive and negative symbol simply show you that whether the graphs are increasing or decreasing. स्टीपनेस जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? मॉड्यूलस पे डिपेंड करते हैं। अब मॉड्यूलस लेने के बाद यही बड़ा आ रहा है ना, ये ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ ज्यादा स्टीप है। इसका नंबर कम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ज्यादा फ्लैट है। समझ रहे? क्लियर है क्या नहीं? ओके ओके सर। ओके सर। ओके, ये नोट किया? नोट कर लीजिए। नोटेड सर। आगे जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज rate of change and instantaneous rate of change. मान लीजिए एक कर्व है
ऐसा है, ठीक है. दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x. सो दिस पॉइंट इज a, this point is b. So if you take two finitely different points, if you take two finitely different points and you calculate the rate of change between a and b, ये मान लीजिए p है. So rate of change between a and b is nothing but bp by ap. सही है. इसका मतलब जब आप a और b के बीच में, if you are measuring the rate of change of y with respect to x, the answer is this. So this is called average rate of सर change. ये tan थीटा. क्या है? सर ये tan थीटा है सर. सर tan थीटा है ना ये? tan थीटा है ना. अगर मान लीजिए आप ए बी को ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ज्वाइन ए बी बाय स्ट्रेट लाइन, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो दिस इज नथिंग बट tan थीटा. सही है. ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. क्लियर है. इसका ये मतलब नहीं ना इसके बीच में कोई भी आप दूसरा पॉइंट लिया तो मान लीजिए ये बी डैश है, ये और बी डैश के बीच में भी यही रेट ऑफ चेंज होना चाहिए या चेंज हो सकते हैं? Will the rate of change between A and B, any 2 points between A and B, ये रेट ऑफ चेंजेस सारा सेम होगा या अलग अलग हो सकते हैं? अगर मान लीजिए ए एंड बी डैश के बीच में रेट ऑफ चेंज, ए एंड बी के बीच में रेट ऑफ चेंज सेम होना चाहिए या अलग हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं. अलग हो सकते हैं ना, क्योंकि ए और बी डैश के बीच में चेंज जो है वो इसका tan होगा ना, tan थीटा डैश होगा, राइट. ए एंड बी डबल डैश के बीच में रेंज रेट ऑफ चेंज कुछ और होगा. सही है. So you can have different rates of change between different points within A and B. समझ में आ रहे? अगर मान लीजिए मुझे I want instantaneous rate of change, instantaneous rate of change at point A चाहिए मुझे, at point A चाहिए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा लॉजिकली? मुझे A एंड B के बीच में एवरेज नहीं चाहिए, एग्जैक्टली A पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा स्पीड कितना है. यूजुअली रेट ऑफ चेंज को आप स्पीड मान सकते हैं ना, ठीक है. सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट ए. सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? सो दिस कैन बी थॉट एनालॉगस टू ए सिचुएशन लाइक दिस. मान लीजिए आप आसनसोल से दुर्गापुर जा रहे हैं, आपको 1 घंटा लगा है. सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल? यहाँ से दुर्गापुर तक आपको मान लीजिए 1 घंटा लगा, इसका मतलब व्हाट इज द एवरेज स्पीड बिटवीन आसनसोल एंड दुर्गापुर? डिस्टेंस कितना है आसनसोल एंड दुर्गापुर के बीच में? अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स. 40 किलोमीटर्स है. ओके. सो 40 किलोमीटर्स इन 1 आवर, 40 किलोमीटर्स पर आवर होगा एवरेज स्पीड. इसका ये मतलब नहीं ना हर जगह आप 40 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड में ही जा रहे, बीच आप ज्यादा स्पीड में भी गया होगा, कम स्पीड में भी गया होगा, राइट. आपको एक एक इंस्टेंट में मुझे स्पीड चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड यू डू फॉर स्पीड एच एट ईच इंस्टेंट? So you have to break it into parts. हाँ, तो छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ना. मान लीजिए वो 40 किलोमीटर को मान लीजिए 1-1 किलोमीटर का पार्ट्स किया. सो पहला किलोमीटर में स्पीड, दूसरा किलोमीटर में स्पीड, तीसरा किलोमीटर में स्पीड, ऐसा करके छोटे छोटे इंटरवल्स कर सकते हैं. आपको 40 इंस्टेंटेनियस स्पीड्स आएगा. बट विद इन Yes, sir. 1 किलोमीटर ऑल्सो यू माइट हैव डिफरेंट स्पीड्स, राइट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर को मान लीजिए आप 1-1 मीटर किया. सो 1 किलोमीटर के अंदर आपको 1000 डिफरेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड्स आएगा. 1 मीटर भी नहीं चाहिए और इंस्टेंटेनियस चाहिए. सो 1 मीटर को आप क्या कर सकते हैं? 1-1 मिलीमीटर कर सकते हैं.
तब एक मीटर के अंदर आपको 1000 इंस्टेंटेनियस स्पीड्स आएगा, बट वो भी इंस्टेंटेनियस नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर को और 1000 पार्ट्स कर सकते हैं, 1 माइक्रोन। सो 1 मिलीमीटर के अंदर आपको 1000 इंस्टेंटेनियस स्पीड्स आ सकते हैं। सो ऐसा करके आप छोटे छोटे इंटरवल में आप स्पीड्स मेजर किया तो वो इंस्टेंटेनियस की तरफ जा रहे हैं, राइट। सो एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस करना है तो क्या करना पड़ेगा, नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। सो वो डिस्टेंस को कितना लेना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस पे आप स्पीड मेजर किया तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा, 1 मिलीमीटर या 1 माइक्रोन या 1 नैनोमीटर, कितना होना चाहिए इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब एग्जैक्टली उस पॉइंट पे Tends to मुझे zero. स्पीड चाहिए। हाँ Tends to 0. हाँ, Tends to टेंड्स टू zero. 0 होना चाहिए ना, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए क्या टेंड्स टू 0 होना चाहिए, So tends to zero. Tends to Tends zero. to 0. है ना। इज इक्वल टू 0 हुआ तो फायदा नहीं होगा, इज इक्वल टू 0 का मतलब आप मेजर ही नहीं कर रहे हैं, राइट। सो कुछ डिस्टेंस तो होना चाहिए, बट वो डिस्टेंस जो है बहुत छोटा होना चाहिए, राइट। अगर कुछ भी डिस्टेंस नहीं है तो भी नहीं चलेगा। सो यू हैव टू हैव सम डिस्टेंस, बट दैट डिस्टेंस शुड टेंड टू व्हाट, 0। क्लियर है। So Zero. instantaneous rate of change at point A, if you want this, the points between which, the points between which the rate of change is measured should be what, should be, एक नया वर्ड लिख रहा हूं देखिए, infinitesimally close। इनफाइनेटेसिमली क्लोज का मतलब बहुत 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 होना चाहिए, राइट। सही है, क्लियर। सो उसके लिए मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालता हूं। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस। सो दिस वाज फर्स्ट डन बाय आइजैक न्यूटन। ठीक है, दिस चैप्टर ऑफ कैलकुलस इज डिजाइन्ड बाय टू मैथमेटिशियंस। वन इज आइजैक न्यूटन, आपको तो पता है। ठीक है, आपका आइजैक न्यूटन अपना ग्रेविटेशन का थ्योरी जब डेवलप कर रहे हैं, उसको इस कैलकुलस का जरूरत पड़ा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो कैलकुलस। सो न्यूटन ने अपने से पूरा एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट किया विच इज कॉल्ड कैलकुलस। ये लिमिट्स, ये सारा कॉन्सेप्ट उसी ने दिया है। एंड एट द सेम टाइम रशिया में एक और मैथमेटिशियन है जिसका नाम है लाइबनिट्ज। कभी सुना है? हाँ सर। सुना है क्या लाइबनिट्ज? हाँ। ठीक है, ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस का जो ब्रांच है वो मतलब डेवलप किया। ठीक है, उस समय इतना कम्युनिकेशन नहीं है ना। अभी अभी हमको क्या है, बाकी देशों में क्या रिसर्च हो रहा है सब कुछ हमको पता चल जाता है गूगल से। बट उस समय आइजैक न्यूटन तो इंग्लैंड में बैठे हैं, लाइबनिट्ज तो रशिया में है। ठीक है, अपना अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं दोनों। एंड नियरली एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द सेम कॉन्टेम्पररीज है दोनों, से दोनों इंडिपेंडेंटली ये लॉजिक्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो हम नोटेशंस जो यूज करते हैं, जो नोटेशंस आने वाला है, दोज नोटेशंस आर मोस्टली गिवन बाय लाइबनिट्ज। न्यूटन अपना अलग नोटेशंस यूज करते थे, बट एज ठीक है टाइम वेंट ऑन, लाइबनिट्ज नोटेशंस हैव ठीक है सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। समझ में आ रहे? So now we are going to derive an expression for instantaneous rate of change of y with respect to x. आगे जा रहा हूं, नोट किया?
क्या नोट कर रहा है क्या? Yes, sir. Noted. साग्निक, अमितम अग्रवाल बुक वी हैव टू बाय नाउ और लेटर ऑन। ओके साग्निक, अभी अभी ले लीजिए, ठीक है, डोंट नीड टू वेट फॉर लेटर। सर आपने जो कैलकुलस के लिए बुक सजेस्ट किया तो उसका नाम रिपीट करेंगे? एक काम करता हूँ मैं बेटा, मैं अमेजोन में लिंक भेज देता हूँ आपको अच्छे सा, ठीक है, बुक का डिटेल सारा भेज देता हूँ मैं। थैंक यू सर सर। सर हाँ बोलिए बेटा। सर अरियन का बुक है सर। हाँ अरिहंत का बुक है। ओके सर, भेज दीजिएगा सर। हाँ ठीक। So now we are going to look at the mathematical expression for instantaneous rate of change. Okay. So assume that you have a function y is equal to f of x. Okay. मान लीजिए this is a point whose coordinate is x. Okay. मान लीजिए ये एक पॉइंट A है जिसका x कोऑर्डिनेट x है. ओके. सो y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? बिकॉज दिस इज पॉइंट ऑन y इज इक्वल टू f ऑफ x है ना. तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? f ऑफ x होगा. सही है क्या नहीं? x का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? f ऑफ x होगा ना. सो दिस पॉइंट इज x, f ऑफ x. क्लियर है? मान लीजिए ये वाला पॉइंट से आप h डिस्टेंस आगे गए. You have gone a distance of h forward. So you are getting a point B. So इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? x कोऑर्डिनेट x प्लस h हो जाएगा. y कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोल सकते हैं व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट? X plus f H. x plus h. f ऑफ x प्लस h. सही है. x प्लस h f ऑफ x प्लस h. नाउ what is the rate of change of y with respect to x? What is the change in y by change in x? f of x plus h minus f of x by x plus h minus x. सही है. y2 minus y1 by x2 minus x1. सही है कि नहीं? Now, what is the instantaneous rate of change? Instantaneous rate of change. Instantaneous rate of change of y with respect to x is nothing but limit h tends to 0 delta y by delta x. सही है क्या नहीं? ये दोनों पॉइंट्स जो ले रहा हूं वो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए? अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो बहुत 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 छोटा होना चाहिए. उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इज बिकमिंग वेरी 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 स्मॉल, so that is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by, यहाँ x and x कैंसिल हो गया, so सिर्फ h बच रहा है. समझ में? So instantaneous rate of change of y with respect to x is nothing but limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Okay. So this is called dy by dx. This is called, इसी को हम dy by dx बोलते हैं. dy का मतलब क्या है? What is the meaning of dy? डेल्टा y का मतलब क्या है? डेल्टा y का स्मॉल मतलब चेंज इन y. y. ठीक है, चेंज इन y. स्मॉल. Okay. Whenever we say delta, this is finite change in y. फाइनाइट चेंज का मतलब जो आप मेजर कर सकते हैं.
dy का मतलब है इनफाइनेटेसिमल चेंज इन y। डिफरेंस समझ में आ रहा है dy और डेल्टा y के बीच में? d का मतलब है इनफाइनेटेसिमल, डेल्टा का मतलब फाइनाइट। क्लियर है? इजी? So this dy by dx, does it depend on x? ये dy by dx हर पॉइंट पे सेम होता है कि या हर पॉइंट में चेंज भी हो सकता है? Will the instantaneous rate of change be same at all the points on the curve or different हो सकता है? सर सेम हो सकता है। सेम हो सकता है, बट सेम होना चाहिए या डिफरेंट भी हो सकता है? डिफरेंट भी हो सकता हाँ, है। डिफरेंट भी हो सकता है, राइट? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x में डिपेंड ऑन x। जहां जहां आप पॉइंट लेते हैं वहां अलग अलग आ सकते हैं ना, राइट? So this dy by dx will also be a function of x. समझ में आ रहा है? जैसा y is a function of x, dy by dx will also be a... So dy by dx को आप f dash of x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो we represent it by f dash of x. क्लियर है? ओके? और d by dx of f of x, y के प्लेस में आप f of x भी लिख सकते हैं. All these are same notations. ओके? f dash of x का मतलब क्या है? Instantaneous rate of change of y with respect to x at some x. क्लियर है? सो यहां जो भी हम कर रहे हैं इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब ये करना. सो डूइंग दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. समझ रहे? डूइंग दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. सो नेक्स्ट टाइम आप से पूछा जाता है डिफरेंशिएट f ऑफ x, आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन. क्लियर है? सो डिफरेंशिएशन करने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? If you are asked to differentiate f of x, you have to find this limit. ये लिमिट फाइंड किया तो ठीक है, वॉट एवर यू गेट इज द डिफरेंशिएशन. क्लियर है? सो इस लिमिट फाइंड करने को हम बोलते हैं कि दैट्स द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इजी है? ओके. नोट कर रहे? अगर नोट किया तो बोलिए, आगे जाएंगे. Yes, sir. सब लोग सब लोग Noted, नोट. sir. Yes, sir, noted. नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर मान लीजिए आप एक कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, व्हाट डज इट ज्योमेट्रिकली मीन? देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या देखे हम? मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं,
रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बिटवीन a एंड b का मतलब है ए बी को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, इसका स्लोप सही है क्या नहीं? रेट ऑफ चेंज को हम tan थीटा डिराइव किया ना हमने, अगर इफ दिस इज थीटा, रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट tan थीटा. सो बट tan थीटा को में हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन. हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक स्टार्ट नहीं किया, बट इफ ए लाइन makes an angle theta with x-axis, tan theta is called what? The slope of the line. Clear है? Okay? अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट बी को आप ए का बहुत बहुत क्लोज लेके आ रहे हैं. तो मान लीजिए यहां तक लेके आया, ये वाला लाइन हो गया, राइट? बहुत बहुत सामने लेके आया तो कैन यू सी दैट द लाइन बिकम्स tangent to the curve. If you bring this point B infinitesimally close to A, the line joining A and B will become the tangent to the curve. ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? एक्चुअली जब तक दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं उसको हम सीकेंट बोलते हैं ना. But when this B goes infinitesimally close to A and वो दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं, then effectively the line meets the curve at how many points? अगर दो पॉइंट्स में मीट करना है तो वो दोनों पॉइंट्स अलग तो होना चाहिए, बट the line will meet the curve at 2 points which are infinitesimally close. इसका मतलब effectively क्या हो जाएगा वो? That will become the tangent, right? So the differentiation gives you slope of tangent. समझ में आ रहे? ये क्लियर है क्या नहीं? Differentiation gives you the slope of tangent. Value of differentiation at a point x is equal to a. Value of differentiation at a point x is equal to a. So f dash of x is the differentiation. अगर x के प्लेस में आप a पुट किया तो एक नंबर आएगा ना. f dash of x is the differentiation function. Is the function of differentiation. So यहाँ x के प्लेस में कोई भी एक नंबर पुट किया तो what is this called? This is called the differentiation at a point x is equal to a. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं dy by dx at x is equal to a. Vertical line is at x is equal to a. Clear है? यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. So now we understand the first principle of differentiation. So ये first principle of differentiation में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो समझने के लिए कोशिश करिए. यहां तक नोट किया? आगे जाएंगे? सर बोलिए. सर वो dy by dx वो लाइन क्या है सर? लाइन नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मान लीजिए कर्व है, एक कर्व ऐसा है, मान लीजिए ये वाला a है, ये वाला b है. डिफरेंशिएशन क्या देगा? इस लाइन का स्लोप देगा. डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब रेट ऑफ चेंज बिटवीन a एंड b इज द स्लोप ऑफ दिस सीकेंट. सो डिफरेंशिएशन भी रेट ऑफ चेंज ही है ना, बट कौन दोनों पॉइंट्स के बीच में?
ए बी। कौन दोनों पॉइंट्स बीच में रेट ऑफ चेंज है डिफरेंशिएशन? तो So ये A और बी जो B। है, बी गोस क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू ए, राइट? आप ध्यान दे दीजिए, आप, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं बट इमेजिन करिए, ए पे एक टेंजेंट होता है ना, एज यू गो फ्रॉम बी, बी डैश, बी डबल डैश, बी ट्रिपल डैश, ये लाइन जो है दिस स्लोली बिकम्स मोर एंड मोर टेंजेंट एट पॉइंट ए। समझ रहे? ये ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो ज्यादा टेंजेंट बनते रहे, राइट? देखिए, एंड ये बी जो है अगर बहुत 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 सामने आ गया तो वो लाइन जो है वो टेंजेंट जैसा दिख जाएगा। So as B goes closer and rate of change becomes the slope of tangent. But rate of change is nothing but the instantaneous rate of change. है ना? B जैसा आगे लेके जाते हैं. Instantaneous rate of change is nothing but the differentiation. So differentiation is nothing but the slope of tangent. Clear है? Okay है क्या नहीं? आगे जाएंगे? Yes, sir. Next. So differentiation of y is equal to f of x is a limit, right? So f dash of x is given as, what is the formula? Limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h, right? This is the definition of differentiation. सही है? So जैसा हमको जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए, x से हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं. कितना आगे जा रहे हैं? टेंडिंग टू 0 आगे, right? But it's not necessary that you only go forward, you can also go backward, right? थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं या थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए. सही कि नहीं? Right or wrong? So actually in this limit there are two limits which are hidden. एक है limit h tends to 0 plus f of x plus h minus f of x by h. दूसरा है limit h tends to 0 minus f of x plus h minus f of x by h. Okay. So if limit has to exist, what is the condition? Right limit should be same as left limit. दोनों defined होना चाहिए और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए. समझ में आ रहे? क्लियर? बट Yes, आपको sir. लिमिट्स का थ्योरी से ये पता चल गया कब आपको दोनों निकालना पड़ेगा, कब आपको एक से काम हो जाएगा. याद है? दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन. यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है. अगर आपको पीस वाइज फंक्शन है, एक बार राइट साइड अलग से डिफरेंशिएशन करके देखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड अलग से डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा. दोनों सेम आए तो तभी डिफरेंशिएशन इज वैलिड. मतलब the function has a differentiation at that point, otherwise no. Clear है? So a function is differentiable at x is equal to a if f dash of a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a by h is defined. सही है कि नहीं? अगर ये कुछ आ रहा है तो अच्छा नंबर, then a function is differentiable at x is equal to a. Clear है?
अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो एक लिमिट अच्छा नहीं आने के लिए बहुत सारे केसेस है। कभी फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ तो नहीं आएगा, राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट अलग है तो भी नहीं आएगा, कोई एक लिमिट है दूसरा लिमिट नहीं है तो भी नहीं आएगा, राइट। यू हैव डिफरेंट केसेस वेयर ए लिमिट मे नॉट बी डिफाइंड। क्लियर है? ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ दिस लिमिट exists finitely. Clear है? So a function is said to be differentiable. A function is said to be differentiable if it what? A function is said to be differentiable if it can be differentiated at each and every point on its domain. Okay, clear है क्या नहीं? A function is said to be differentiable if it can be differentiated at each and every point on the domain. Is it okay? So observation of differentiability from the graph. एक फंक्शन का ग्राफ देख के हम डिसाइड कर सकता है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन ऐसा है, फंक्शन इज लाइक दिस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं शार्प एज। दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड शार्प एजेस। समझ रहे? शार्प एज में क्या होता है? शार्प एज में टेंजेंट होता है। डज ए शार्प एज हैव ए यूनिक टेंजेंट? ध्यान दे दीजिए, अगर यहां से थोड़ा सा पीछे गया तो आपको टेंजेंट जो है ये वाला लाइन लगेगा, राइट। अगर पीछे से इस पॉइंट तक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा लगेगा, अगर आगे से इस पॉइंट तक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा लगेगा ना। सही है? एक कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करना आता है ना आपको। सो कैन यू ड्रॉ ए टेंजेंट एट ए शार्प एज? No, sir. No, sir. इसका मतलब है जहां भी शार्प एजेस है, ठीक है, शार्प एजेस मींस नॉट डिफरेंशिएबल। समझ रहे? शार्प एजेस मींस नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? नेक्स्ट, मान लीजिए ग्राफ ऐसा है। ऐसा ग्राफ को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ्स। क्या है? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ्स। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब है नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों दिख रहा है आपको? देखिए यहां टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा आएगा, इस तरफ टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस तरफ टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसा आएगा ना, क्योंकि टेंजेंट हर बार गिवन पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा। गिवन पॉइंट से थोड़ा सा पीछे वाला पॉइंट मिला दिया तो एक टेंजेंट आया, ये वाला पॉइंट से थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट ऊपर चला गया ना, सो दूसरा टेंजेंट ऐसा चला गया, तो इसका स्लोप इन्फिनिटी आ गया ना, क्योंकि सिर्फ y चेंज हो रहे हैं,
एक्सचेंज नहीं हो रहे, राइट? सो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ्स आर नॉट डिफरेंशिएबल, समझ में आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ्स आर नॉट डिफरेंशिएबल, क्लियर है? आया या फिर एक्सप्लेन करना है? सर आपने जो फर्स्ट केस में कहा था वो फिर से रिपीट किए। शार्प एज वाला है क्या? यस सर। देखिए आपको मान लीजिए एक कर्व है ऐसा, इस पॉइंट पे मैं बोलता हूँ टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए, मतलब आप लगभग ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ऐसा होता है ना टैंजेंट, ऐसा कुछ होता है ना टैंजेंट, राइट? यस सर। वैसे ही मान लीजिए आप शार्प एज दे रहा हूँ ऐसा, इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ, कैसे ड्रॉ करिएगा? टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ, कैसे करिएगा? मान लीजिए आप इस तरफ भूल जाइए, इस तरफ से टैंजेंट ड्रॉ किया तो आपको ऐसा आएगा, राइट? अगर इस तरफ से टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए कोशिश किया तो ऐसे जाएगा, राइट? सो इज देयर अ फिक्स्ड टैंजेंट? तो स्लोप ऑफ टैंजेंट ये आएगा, ऐसा कुछ बोल सकता हूं मैं? एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं बोल सकता ना, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टैंजेंट. So whenever you have a sharp edge, you cannot draw a tangent at that point, a fixed tangent at a point. So not differentiable. Clear है? यस सर। आपको भी पता है ना फिजिक्स में, जैसा मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है एक बॉल इस रास्ते में जा रहे हैं, as the ball leaves the surface it goes tangentially, right? अगर ये बॉल जो है बहुत अच्छा सा स्पीड से जा रहे हैं, इस पॉइंट पे आने के बाद किस तरफ जाएगा? टैंजेंशियल की तरफ जाएगा ना, इसका मतलब ऐसे जाएगा, राइट? यस सर। इस तरफ से सोचा तो ये वाला टैंजेंशियल डायरेक्शन होगा, वही इस तरफ से सोचा तो इसी पॉइंट पे व्हाट इज द टैंजेंशियल डायरेक्शन? इस तरफ होगा, राइट? इसका मतलब क्या है? देयर इज नो टैंजेंट एट दैट पॉइंट. सो शार्प एजेस मींस नॉट डिफरेंशिएबल, समझ में आ रहे? यस सर। दूसरा डिसकंटिन्यूअस मींस नॉट डिफरेंशिएबल, समझ में आ रहे? यस सर। एंड कभी कभी ऐसा ग्राफ्स होता है नॉट डिफाइंड एट द पॉइंट ए. एक हॉलो डॉट का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड है ना. अगर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तब आप टैंजेंट के बारे में सोच सकते हैं. टैंजेंट का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. सो वहां फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, सो मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से ये तो है ही नहीं ना एफ ऑफ ए. एफ ऑफ ए तो है ही नहीं, सो ये लिमिट फाइंड कर सकते हैं? फाइंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि एफ ऑफ ए है ही नहीं. सो फंक्शन नॉट डिफाइंड at x is equal to a implies not differentiable. Okay, समझ आ रहा है क्या नहीं? A function not defined at x is equal to a implies not differentiable. Okay, so observation of differentiability from the graph समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया सर. सो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, क्योंकि आपको बहुत सारा फंक्शंस के ग्राफ्स तो पता है. sin x is it differentiable everywhere? y is equal to sin x, is it differentiable everywhere? यस सर. Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. क्यों? अच्छे से स्मूथली जाएगा ना, सो हर जगह आप टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? क्लियर? सो लेट अस ऑब्जर्व फंक्शंस.
ऑब्जर्व सर ग्राफ्स सर ऑफ, हाँ बोलिए बेटा। सर अगर थोड़ा सा पीछे जाइए सर, एक बस एक चीज रुकना था नीचे। कुछ थोड़ा पूछना है क्या? नीचे कीजिए। हाँ सर थोड़ा नीचे। हाँ बोलिए। हाँ बस ठीक है सर। नोट करना थोड़ा है क्या? नोट करना सर। हाँ नोट यस करो। सर थोड़ा सा। सर हो गया सर। हो गया। यस सर। So next, let us observe graphs of standard functions. First, modulus function. So आप ग्राफ याद है? मंडे फंक्शन का टेस्ट है, स्टार्ट किया प्रिपरेशन? सर वी शेप। वी शेप है ना? सो इसका बोल सकते हैं, कैन यू एनालाइज द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस ग्राफ? डिफरेंशियबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 0,0। ठीक है, डिफरेंशियबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यूजुअली हम x का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली 0,0 नहीं बोलते हैं, एट x इज इक्वल टू 0। ओके, इस पॉइंट पे शार्प एज दिख रहा है ना आपको? साइन x का ग्राफ डिफरेंशियबल Yes, sir. एवरीवेयर, समझ रहे? एस जी एन एक्स, सिग्नम एक्स, ग्राफ याद है? इसका क्या क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशियबल एवरीवेयर, एनी एक्सेप्शंस? डिफरेंशियबल एक्सेप्ट एवरीवेयर 0। The एक्सेप्ट value of x 0. 0। x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ब्रेकेज आया ना। क्लियर है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा है ना ग्राफ? ऐसा है ना? सो डिफरेंशियबल एवरीवेयर, एनी एक्सेप्शंस एक्सेप्ट एट पॉइंट्स वेयर x बिलोंग्स टू एक्स z इज बोल एन सकता हूँ? इंटीजर। एक्सेप्ट एट पॉइंट्स वेयर x बिलोंग्स टू z बोल सकता हूँ? यस सर। सो ऐसा आप बाकी ग्राफ्स को भी ऑब्जर्व करके कैन यू डिराइव योर कंक्लूजन्स अबाउट डिफरेंशियबिलिटी? Yes, sir. यस और नो? आप आपका सारा ग्राफ्स को देख के आप एनालाइज कर सकते हैं। ओके, आगे जाएंगे। आगे जा Sir, सकता wait, हूँ? note कर रहे हैं. हाँ नोट कर लीजिए। Yes, sir.
हो गया। हो गया Yes. ना? अब तक जो हम किए हैं वो डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन है। अब डिफरेंशिएशन के बारे में लगभग आइडिया सबको आ चुका है। ओके, नाउ लेट अस गो टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है आपका स्कूल के पर्सपेक्टिव में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो फिजिक्स में आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलास देखे हैं ना? सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होते हैं? So nx Nx to the minus power n. n minus 1. So d by dx of e to the power x, d by dx of a to the power x, exponential functions. इसका e power x होगा, इसका So right? a Exponential functions. Third, algebraic functions, exponential functions, logarithmic functions. क्या है? 1 by x. Clear? इसके बाद differentiation of trigonometric functions. ये भी फंक्शन, ये भी पता है आपको? साइन Yes, एक्स का sir. कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टैन एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स. ओके, right? Now the question is, how did we get these formulas? ये जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूलाज है ये कहां से आए हैं? ठीक है, द आंसर इज वी गॉट ऑल दिस फॉर्मूलाज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन. अब हमारा काम है इसमें एक एक फॉर्मूला को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करना. क्लियर है? तो सबसे पहला, सो डिफरेंशिएट एक्स पावर एन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स. ओके, क्वेश्चन क्लियर है? डिफरेंशिएट एक्स पावर एन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स. Okay, so f of x is nothing but x to the power n इस क्वेश्चन के लिए, right? So f dash of x का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h. सही है? यही है ना फर्स्ट प्रिंसिपल. So that is equal to limit h tends to 0 f of x plus h क्या होगा? f of x is x power n, f of x plus h is x plus h whole power n, right? Minus f of x is x to the power n by h. Okay, so now this differentiation question has become a limits question. ये वाला लिमिट को आप सॉल्व करना है. so ये लिमिट्स का आप अलग अलग प्रोसेस के बारे में सोच सकते हैं. so ये लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे हम? Is there any standard method? कुछ सोच सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड मेथड? Any standard method? देखिए, let x plus h is equal to t. okay,
देखिए क्या होने वाला है, लेट x प्लस h इज इक्वल टू t, एज h टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू व्हाट, h अगर 0 पे जा रहे तो t कहाँ जाएगा, X पे t X टेंड्स टू पे x, सही है। तो ये वाला लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू x t पावर n माइनस x पावर n बाय h को आप t माइनस x लिख सकते हैं। क्लियर है? सो ये देख के कुछ याद आ रहा होगा, ये देख के कुछ याद आ रहा है। सर x to the power n minus a to the power n फॉर्म सो का है। आपके पास एक स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1, by है ना, x minus a। है ना, एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है ये, जस्ट थोड़ा सा प्लेसेस बदल गया, x के प्लेस में t है, a के प्लेस में x है। सो क्या होगा इसका आंसर, n इंटू a के प्लेस में x है ना, सो x टू द पावर n माइनस 1। सो ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया। Yes, sir. ओके लग रहे हैं? ठीक है, हो गया मतलब क्वेश्चन आंसर। So we have differentiated is equal to x power n using the first principles. एग्जाम में दिया तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। कर सकते हैं या बहुत डिफिकल्ट हो रहे हैं? नोट किया? Yes, sir. आगे जाएंगे। Next, let us go to exponential functions. Differentiate y is equal to e power x and y equal to a power x using first principles. So first y is equal to, मतलब f of x is equal to e to the power x, right? So f dash of x का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x by h। अब ध्यान दे दीजिए, यहां मैं राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट अलग से फाइंड नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नॉन प्रॉब्लमेटिक फंक्शंस है ना। सो लिमिट्स में हम देखे हैं कब राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालना है, कब नॉर्मली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां देखिए, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h is nothing but e power x plus h minus e power x by h, okay, that is equal to limit h टेंड्स टू 0 e power x अगर कॉमन लिया तो e power h minus 1 by h, ओके। e power x बाहर कर सकता हूं क्योंकि लिमिट का वेरिएबल h है, x is a constant with respect to this limit। ये क्या होगा, h टेंड्स टू 0 e power h minus 1 by h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e power h minus 1 by h कितना होगा, 1. सो e power x into 1 e power x आ गया, डिफरेंशिएशन भी e power x, f of x is equal to a to the power x, f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h, so limit h tends to 0 a power x plus h minus a to the power x by h, limit h tends to 0 a power x कॉमन लिया तो a power h minus 1 by h,
ए पावर एक्स बाहर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ए पावर h माइनस 1/h क्या होते हैं? इसका आंसर क्या है? ln a। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्लियर है? सर हम्म, सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर प्लीज। ये वाला। नेटवर्क थोड़ा इशू था सर, नेटवर्क। हम्म, कौन सा एक्सप्लेन करना है? सेकंड वाला। तो वही y इक्वल टू fx, वही पहले से। क्वेश्चन है यस ये सर। दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन का ये डेफिनेशन है ना, ये Yes, sir. डेफिनेशन है ना। सो हमारा अभी जो डिफरेंशिएट करने वाला फंक्शन है वो e पावर x है। f ऑफ x इज e पावर x। so f ऑफ x प्लस h क्या होगा? e पावर x प्लस h माइनस f ऑफ x इज e पावर x बाई h। e पावर x अगर कॉमन लिया तो e पावर h माइनस 1/h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, e पावर h माइनस 1/h तो 1 है ना स्टैंडर्ड लिमिट। सो e पावर x इंटू 1, e पावर x इज द आंसर। ओके, यस सर। सेम प्रोसेस विद a पावर x। मुझे a पावर x में स्टैंडर्ड लिमिट क्या है? a पावर h माइनस 1/h तो log a होता है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बाद लॉगरिदमिक फंक्शंस। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू ln x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो इस बार f ऑफ x इज इक्वल टू ln x। सो f डैश ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h minus f of x by h। So limit h tends to 0, log of x plus h minus ln x by h, that is equal to limit h tends to 0, ln a minus ln b is ln a by b, limit h tends to 0, ln 1 plus h by x by h। तो अगर h 0 पे जा रहा है तो h by x भी 0 पे जाएगा। तो इसको बाई एक्स इंटू एक्स करता हूँ डिनोमिनेटर में। तो h by x 0 पे जा रहे हैं, सो लॉग ऑफ 1 प्लस समथिंग बाई सेम थिंग, ये पूरा क्या हो जाएगा? 1. 1. तो बचा क्या है? 1 बाई एक्स। डिफरेंशिएट हो गया। सबको ये समझ में आ रहा होगा सारा डिफरेंशिएशन फॉर्मूलास कहाँ से आए हैं? दीज आर द डेरिवेशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंशिएशन फॉर्मूलास। ओके, और कौन सा फंक्शंस बचा है? अलजेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक, लास्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सही है। सो डिफरेंशिएट sin x tan x secant x।
साइन एंड कॉस का प्रोसेस लगभग बराबर होगा, सो इसलिए साइन में कर रहा हूँ, कॉस खुद से कर सकते हैं, टैन में कर रहा हूँ, कॉट खुद से कर सकते हैं, सीकेंड में कर सकता हूँ, करता हूँ, कोसिकेंट आप खुद से कर सकते हैं। ओके, प्रोसेस लगभग सेम होगा। y is equal to f of x is equal to sin x. F dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Limit h tends to 0 sin of x plus h minus sin x by h. That is equal to limit h tends to 0 sin c minus sin d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, 2 sin c minus d x plus h minus x, h बचेगा by 2, 2 sin c minus d by 2 into cos of 2x plus h by 2 by h. As h tends to 0, h by 2 also tends to 0. So by 2 into 2 कर रहा हूँ, so sin h by 2 by h by 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 and 2 gets cancelled, इंडिटरमिनेसी तो निकल गया, तो जस्ट आप h इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, cos of 2x by 2 cos x आ गया। ओके ये Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज किया, 2 sin c minus d by 2 cos c plus d by 2 is the formula. So f of x is equal to tan x, f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. So limit h tends to 0 tan of x plus h minus tan x by h. Okay, that is equal to limit h tends to 0 tan x plus h is sin x plus h by cos x plus h, sin x by cos x by h. Okay, लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम ले सकता हूँ, ओके ये वाला स्टेप, इज दिस स्टेप ओके? Yes, sir. Yes, sir. न्यूमरेटर देखे कुछ याद आ रहे हैं, साइन ए Sin कॉस, of Sin A A plus B. minus B. सो ए माइनस बी किया तो क्या बचेगा, Sin H. है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर साइन h बचेगा, सो एज h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h क्या होगा, 1 हो गया, इंडिटरमिनेसी हैज बीन कैंसिल्ड, सो h के प्लेस में 0 पुट किया तो x x 1 बाय कॉस स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर x आ गया।
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. f of x is equal to secant x. देखिए f dash of x का फॉर्मूला इतना बार लिखना है कि आपको याद हो जाना चाहिए, इसलिए बार बार लिख रहा हूं मैं। सबको याद हो गया f dash of x का फॉर्मूला? Yes, sir. So secant of x plus h minus secant x by h, that is equal to limit h tends to 0. secant में आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज नहीं है, so मैं cos में कन्वर्ट कर रहा हूं। कर सकता हूं? नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज LCM. cos x minus cos of x plus h by h into cos x into cos of x plus h, limit h tends to 0. cos c minus cos d का फॉर्मूला, cos c minus cos d का फॉर्मूला 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. cos c minus cos d is c plus d into sin minus c by 2. इसमें से ये माइनस करना है, तो h by 2 आएगा by h cos x into cos of x plus h. अब मेरा काम हो गया, दिख रहे? by 2 into 2 कर लेता हूं, so sin h by 2 by h by 2 क्या हो जाएगा? 1 हो गया, 2 कैंसिल हो गया। नाउ इनडिटरमिनेसी हैज बीन रिड्यूस्ड। अब h इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, ऊपर sin x बचेगा, नीचे cos x, एक और cos x, तो sin x by cos x is tan x, 1 by cos x is secant x, तो secant x tan x आ गया। ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have derived the basic differentiation formula. सारा differentiation basic formulas जो है हम first principle से derive कर लिए हैं। मोस्टली ये आपका स्कूल में नहीं पूछेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट फंक्शंस पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा डिफिकल्ट फंक्शंस लेंगे, ठीक है, एंड फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करके देखेंगे। ओके, सो मोस्टली आपका अगला क्लास में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्लास कब है आपका? कल है? Yes, sir. सो यहाँ तक समझ में आया ना सब कुछ? Yes, sir. ठीक है, आज Yes, बहुत sir. बहुत ज़्यादा किए हैं। एक Yes, बार sir. आप घर में जो आज किए हैं रिवाइज करना चाहिए, नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा। Okay, sir. We have done a lot of new things today. Okay, so अच्छे से रिवाइज कर लीजिए before tomorrow. Okay, so let us stop here. Thank you, sir. हाँ, Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. goodbye बेटा। Thank you, sir.